Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. I'm with Dr. S.Y. Quraishi, the author of The Population Myth, Islam, Family Planning and Politics in India. Dr. Quraishi, welcome to Softcover, which is ThePrint's online platform for interviews and publishing. And thank you so much for this opportunity to talk to you. Fascinating book. I've been through it. But my first question to you is, you've been associated in the public eye with the Election Commission. So this, in a sense, is an unusual book, at least for me, and I think for a large variety of readers. So why did you want to write about the population myth as it related to Islam, family planning, and politics? Now, this book came around absolutely accidentally. I had, in 1995, I was Joint Secretary Youth Affairs in the Government of India, when the then country director of UNFPA, who was a Canadian, Mr. Tavy Abrams, he had used my services just for 2 days in integrated women's development project, communication project in Haryana. So he perhaps thought that I'll be a suitable person to write a book on the subject which he wanted me to write on. That was a strategy paper for family planning among the Muslims. Mm-hmm. I was quite taken aback with that request because neither was I a Muslim scholar, nor Islamic scholar, nor did I work in family planning department ever. Now, interestingly, why this inner voice actually turned out to be inner voice and prophetic. 5 years later, I was in London staying with my daughter in her hostel, where somebody called Dr. Quraishi, President of Muslim Doctors Association of UK. Mm-hmm. He called me and he said, "We have read your paper and we want to discuss it with you." I felt that the tone was threatening. I didn't want to get beaten up in London, so I tried to wriggle out and I said, "Look, I'm going away and my flight is there tomorrow morning." So these guys reached the airport. And the statement which they made has stuck with me throughout. They said family planning is a Western conspiracy against Islam, and they hire mercenaries like you through UN agencies to write such papers. If I had taken any money, I would have been hired, and I was hired by UN agency, and hiring will make me mercenary. So the fact that I had not taken any money, I pounced back on them. I said, this cannot, they may be anti-Islam and anti-Muslim, but this cannot be their conspiracy. And, they try to convince me. But this question that has been asked not just by some of these Muslim doctors in England at the time, but across the landscape in India, especially of the last few years, that family planning is considered to be a conspiracy in Islam. How would you respond to that? Absolutely wrong. Absolutely wrong. It is true that Muslims generally believe that Islam is against family planning. In fact, I must admit that when I started writing my paper in 95, I also thought, because I never applied my mind deeply, and I was prima facie of this opinion that Islam opposes family planning. So the fact that Islam is not against family planning, and in any case, even those who believe that Islam is against family planning, I have never seen a conspiracy, I have never seen an appeal, Muslim brothers, please produce children, 10 children, so that you overtake the Hindus and capture power. I have not seen any evidence of any conspiracy, any organized conspiracy. Birth rate has been higher because they genuinely believe that Islam it is against Islam to restrict the family. So that is my conclusion, which I have proved. On the contrary, I have come across, which I have quoted in my chapter on population and politics, the right-wing appeal to the Hindus to produce 10 children because Hindu khatre mein hai. Now, Hindu khatre mein kahan se hai bhai? Jab 1951 में मुसलमानों के मुकाबले में 30 करोड़ हिंदू ज्यादा थे, अब 80 करोड़ हिंदू ज्यादा हैं, तो खतरे में कहां से है वो? जी, तो मैं यही आपसे पूछना चाह रही थी कि if you're quoting the figures that when India became independent in 1947, the population was 361 million, and in July 2020, in fact, these figures are, during the pandemic, the population has been 1.38 billion. लेकिन इसके अंदर if you look at the
breakdown between Hindus and Muslims जो आपने अपनी किताब में quote किया है, उसमें आपने कहा है कि you have looked at this very interesting growth rate of Hindus and Muslims, and if you just and you've said that in 1951 the Hindus were 84% of the population, and today they are 79.8%, and Muslims have gone up from 9.8% to 14%. तो ये जो मुस्लिम अपीजमेंट का जो चार्ज जो आपके ऊपर या जो थोपा जाता है कभी-कभी, do you think that this gives validity to that charge? Correct. You know, आपने ठीक समझ किया, जो मुसलमानों के खिलाफ इल्जाम हैं कि बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं और वो ऑर्गेनाइज कंस्पिरेसी है मेजॉरिटी बन जाने के लिए, जिसकी वजह से डेमोग्राफी का बैलेंस अपसेट हो रहा है जी। तो वो जो मैंने बताया कि दो चीजों से मैं कंसीडर करता हूँ कि मुसलमानों का बर्थ रेट हाईएस्ट है, लेकिन हाईएस्ट इतना नहीं है कि एक मुसलमान हिंदू को क्या एक बच्चा होता है तो मुसलमान के 6 होते हैं। इसमें यह है कि अगर हिंदू के 3 बच्चे हैं तो मुसलमान के 4 बच्चे होते थे। अब तो वो भी 0.5 का गैप रह गया है, वो गैप आहिस्ता आहिस्ता घटता जा रहा है। ये थोड़ा सा बताएंगे, व्हाट इज दिस 0.5% गैप? ये मैं बता रहा हूँ कि जो बर्थ रेट है मुसलमानों में पॉपुलेशन के उसकी फैमिली प्लानिंग की एक्सेप्टेंस सबसे कम है सारे रिलीजन में। तो लेकिन ऐसा क्यों है? उसका ये है कि उसका जो रीजन है कि उसका कुछ तो रीजन ये था कि भाई मुसलमान जनरली बिलीव करता है कि भाई हमारा मजहब उसके खिलाफ है, लेकिन बेसिकली मुसलमान जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं फैमिली प्लानिंग को, उसमें सब में पिछड़ा हुआ है। और क्या फैक्टर्स हैं जो फैमिली प्लानिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं? लिटरेसी। जैसे जैसे लिटरेसी बढ़ती है पर्टिकुलरली लड़कियों की, वैसे वैसे ग्रोथ रेट घटता है, पॉपुलेशन द बर्थ रेट घटता है। दूसरी चीज है इनकम। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी बर्थ रेट घटेगा अक्रॉस कम्युनिटीज, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं, सब कम्युनिटी। इसी तरह सर्विस डिलीवरी अगर इंप्रूव होगी, डॉक्टर पहुंचेगा, नर्स पहुंचेगी, तो बर्थ रेट घटेगा। उसकी वजह से ये जो मैरिज डिले होती है, वर्किंग पॉपुलेशन औरतों की बढ़ती है। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं जो फैमिली प्लानिंग पे एक्चुअली इन्फ्लुएंस करते हैं, नॉट मजहब, वो सब में मुसलमान सबसे बिछड़ा हुआ है। तो यही वजह है, मैंने मेरे एक चैप्टर सिर्फ इसी चीज पे है कि नंबर एक चैप्टर में तो ये क्या फैक्टर्स हैं जो फैमिली प्लानिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं जी। और दूसरा चैप्टर है कि उन फैक्टर में मुसलमान कहाँ स्टैंड करते हैं, सब में पिछड़े हुए ना। उनको तालीम देने की तो आप लोग बात नहीं करते, उनको इनकम देने की तो बात नहीं करते। बात ये करते हैं कि उनसे बिजनेस करना बंद करो, उनसे सब्सिडी लेना बंद करो। तो बेचारे जो वो गरीब हैं वो और गरीब हो जाएंगे, और 2 बच्चे पैदा करते थे तो 3 करेंगे, 3 करते थे तो 4 करेंगे। तो जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उनको तो एड्रेस कीजिए। तो ये आपकी समझ में ये है कि there are several factors, one of them, and I think most importantly you look at literacy and how literacy is directly correlated with the reduction of the fertility rate amongst Muslims. But I found something very interesting, Mr. Quraishi, जिसमें आपने कहा है कि women who, especially Muslim women, this is a patriarchal society, as we all know, whether it's Hindus, Muslims. India के अंदर it's largely a patriarchal society. Save for some pockets in Kerala and in Meghalaya. Now, but if women in this patriarchal family, women have very little agency. And if women are given much more agency, which means that if they have more control over contraception or family planning, then perhaps this can change as well. Yeah, quite right. The patriarchy is across the board, no doubt. Except of course Kerala, again across community. The literacy of women is the lowest among the Muslims, and literacy of Muslim men also is the lowest among the men of India. So we have to address both these issues, because as we have seen, as the literacy of girls goes up, of all communities, even Muslims, automatically the birth rate comes down. And why automatically? With literacy comes the awareness. Also, the possibility that they will start working. Now, the worker population of literate is higher. Worker population have lesser number of children than non-workers, again across community. So, therefore, all these factors are actually interwoven. When with literacy comes awareness, as I've shown. With awareness comes delayed marriage. Similarly, with income comes worker participation.
And with the work participation, again, delayed marriage. So once the marriage is delayed, the productivity gets delayed, the first pregnancy and later pregnancy get delayed. So all these factors are interwoven, and we have to focus on those factors which are determining the family planning behavior rather than on just final conclusion that these guys produce too many children as a conspiracy. जी सर ये बताइए कि मुसलमानों के अंदर I mean I'm not actually going to paint Muslims with the same brush because North Indian UP Muslim and UP and Bihar, Muslims in UP and Bihar are very different from those in Tamil Nadu and Kerala and Karnataka, so you know there are differences everywhere. But my question to you is, in your experience, क्या आपने देखा है पिछले इतने सालों में that Muslim women are looking for agency, लेकिन क्योंकि ये पैट्रियार्की की वजह से उनको जो है कंट्रोल नहीं मिल पाता है अपनी बॉडीज के ऊपर या अपने जो है परिवारों के ऊपर? Yes, absolutely. You know, इसमें analyze किया हुआ है felt need for family planning. कि how many feel that they must do family planning. Men का अलग क्या है, women का अलग क्या है. दोनों में we find कि Muslim men also feel that we must do family planning, but where is the family planning? There is no doctor. डॉक्टर उन गेटोज में मुस्लिम क्लस्टर्स में आते नहीं कि जो मिनी पाकिस्तान है उसमें वो आते नहीं. अब जब डॉक्टर और फैसिलिटीज नहीं आएंगी तो ये लोग फैमिली प्लानिंग करेंगे कैसे? तो लोगों ने आपसे कहा है कि जो हमारे जो गेटोज हैं ये लोग इनको मिनी पाकिस्तान समझते हैं? तो हाँ, ये ऑफ कोर्स बहुत सैकड़ों बार सुना है हमने, ये सैकड़ों बार सुने कि वो कहते हैं. और ये स्टैटिस्टिकली भी मैंने इसमें दिखाया कि एक्सेस ऑफ फैमिली प्लानिंग सर्विसेज to all communities, the Muslims have the least access. क्योंकि अब मैं डिप्टी कमिश्नर था गुड़गांव का, उसमें मेवात एरिया होता था. 50 पोस्टें अगर डॉक्टर की होती थी तो उसमें से 45 पिछले 40 साल से खाली हैं, क्योंकि वहां कोई जाना नहीं चाहता, बैकवर्ड एरिया है. अब अगर आप जाओगे नहीं तो तरक्की कैसे होगी? तो इसलिए विशेष सर्कल ऑफ बैकवर्डनेस हो जाता है. तो उन एरियाज में आपको वैकेंसी मिलेगी क्योंकि कोई जाना नहीं चाहता. दूसरी चीज मैंने एक और उसमें बताई है इसमें किताब में कि अगर आप इफ यू आर ए फैमिली प्लानिंग वर्कर एंड यू कम टू मी कि भाई आपको ज्यादा 3 बच्चे हो चुके हैं, 4 हो चुके हैं, अब आपको नहीं करना चाहिए, और मैं आपको जवाब में कहूं मेरा मजहब इसके खिलाफ है, तो आपको चूंकि मेरे मजहब के बारे में कुछ पता ही नहीं तो आप तो चुपचाप होके चली जाएंगी. तो वही मैं चाहता हूँ कि हम अपने वर्कर्स को बताएं कि मजहब खिलाफ नहीं है, उनको सिखाया जाए और उनको कुरान शरीफ की आयत और हदीस भी दिखाई जाए और वो मुझको दें कि नहीं तुम्हारा रिलीजन तो ये कह रहा है, तुम गलत समझे हो, ताकि. लेकिन ये हमने अपने स्टाफ को इक्विप ही नहीं किया, फट से हमने सरेंडर कर दिया. उसने कहा जी मेरे मजहब के खिलाफ है, अच्छा भाई मुंह लटका के हम चले गए. वी शुड हैव कंटेस्टेड इट नाउ बिकॉज दिस इज अ मिथ अमंग द मुस्लिम्स व्हिच वी शुड हैव कंटेस्टेड. And through training, first of all, develop a resource book. Exactly what does religion say? मेरा एक चैप्टर है इसी पे कि इस्लाम क्या कहता है. इस्लाम ने पूरे कुरान शरीफ में कहीं एक जगह जो प्रोहिबिशन की हो, कहीं पूरे कुरान में प्रोहिबिशन नहीं है फैमिली प्लानिंग की. उसकी सिर्फ इंटरप्रिटेशन हम लोगों ने की है, कुछ फेवर में कुछ अगेंस्ट. और मेरी जो इंटरप्रिटेशन है उससे मैं कंक्लूसिवली मैं दिखाता हूँ कि 1400 साल पहले इस्लाम कुरान ये कहता है एक आयत में कि ऐ नौजवानों, जो जब तुम्हारे पास वेर विदौल हो शादी के लिए तो तुम शादी करो. तो जो चीज कुरान में नहीं समझ में आती थी उसको लोग प्रॉफिट से पूछने के लिए जाते थे. तो एक गरीब आदमी पहुंच गया प्रॉफिट से कि हुजूर मैं गरीब जरूर हूं लेकिन मेरी भी तो सेक्सुअल नीड्स है, मैं तो शादी करना चाहता हूं. तो प्रॉफिट ने उस आयत को रिपीट करके उसमें ऐड किया कि तुम जब तक जब इस काबिल हो जाओ तो शादी करना, लेकिन जब तक तुम नहीं कर सकते तो रोजा रखो, व्रत रखो, क्योंकि उससे सेक्सुअल डिजायर सप्रेस होती है. मैं समझता हूँ पहला वाला कमांड बड़ा क्लियर कि भाई ओनली व्हेन यू कैन अफोर्ड द फैमिली यू शुड मैरी. एंड प्रॉफिट हैज एम्प्लीफाइड इट सेइंग कि टिल देन resort to fasting because that suppresses that. And then there are several hadiths how to practice, whether you know the family planning method which were followed, which were mainly azl, which was withdrawal method. Prophet said, yeah, that is perfect, and all the you know the companions of the Prophet and others, they used to practice those things. Now we have more modern method. So in fact, one scholar from Cairo University, from Al-Azhar University, has written that it is a miracle of history that 1400 years ago, when there was no population pressure anywhere in the world, Islam became a pioneer of family planning concept, and it talked of quality
right upbringing, good education, and all that. So it is only in interpretation that we have faulted, and which is what I am suggesting that we should correct. तो सर ये जो आप कह रहे हैं कि फैमिली प्लानिंग वर्कर्स शुड बी इंट्रोड्यूस्ड टू द to what the Quran Sharif really says or what the Hadith says. But the question is that if the family planning worker जो एक सरकारी बंदा या बंदी होता है, तो वो जो अगर religious concepts अपनाने की कोशिश की नहीं मैं बात कर रही हूँ, but even if they are trying to understand it या अपनी booklets में वो बताएं, so would not this be considered to be, you know, mixing religion with governance? Because हम लोग जो है अपने government पे religion को जो मजहब जो भी है उसको अलग रखना चाहते हैं. हाँ, नहीं, आपने ये बहुत बढ़िया सवाल किया. यही सवाल मैंने 1995 में हेल्थ मिनिस्ट्री से किया जब मैं अपनी रिसर्च कर रहा था. मैंने कहा कि मुझे ये बताओ कि तुमने मुसलमान चूंकि रेजिस्टेंट है, ये तो तुम्हारी हर डॉक्यूमेंट कह रही है, हर प्लान डॉक्यूमेंट हमेशा से ये कह रही है कि मुसलमानों की फैमिली प्लानिंग बहुत कम है और उनके रेजिस्टेंस है. मैंने कहा जब जब जानते हो आप रेजिस्टेंस है, आपने उनको रीच आउट करने की कोशिश क्या की? उनका जवाब बड़ा फनी था. फनी क्या था? जवाब तो ठीक था, पॉलिटिकली करेक्ट था. उनका जवाब ये था कि हम हिंदू मुस्लिम में कोई डिस्टिंक्शन नहीं करते, रिलीजन में नहीं करते, हम तो जनता पूरे पब्लिक के लिए मैसेजेस रखते हैं. नाउ व्हाट मे साउंड पॉलिटिकली एब्सोल्युटली करेक्ट, technically in terms of communication and social marketing is absolutely silly, because according to social marketing or marketing, people are no target audience. Target audiences are always segmented: men and women, rural, urban, rich and poor, old and young. आप छोटे बच्चे का खिलौना आप बूढ़े को थोड़ी सेल करेंगे. तो इसलिए सेगमेंट के मुताबिक हमें कम्युनिकेशन बनाना होता है. और जैसे मैंने आपसे मिसाल दी कि मैं रेजिस्टेंट ग्रुप का मेंबर हूँ, मुसलमान हूँ, आप मेरे पास आए एज हेल्थ वर्कर और मैंने आपको कह दिया कि मेरा मजहब खिलाफ है, तो आपके पास उसका जवाब नहीं है. वी हैव टू इक्विप यू विद द रिप्लाई. That doesn't mean you are interfering in my religion. You are only understanding your target audience, because you have to break my resistance. For that, you have to be knowledgeable about my resistance and then break it with the logical replies. Right. Sir, ये बताइए मुझे, I want to ask you a question about polygamy. क्योंकि अब ये इंडिया के अंदर Hindus are not allowed, especially after the Hindu Code Bill was passed in 1956. May I add, against great resistance by then President Dr. Rajendra Prasad. लेकिन आज की तारीख में there is, if Muslims follow their personal law, उसमें आपको जो है, for a Muslim man, he is allowed 4 wives. अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड जो नहीं है इंडिया के अंदर, अगर आप उसमें देखें, then you have, it's very clear that bigamy is not allowed, or polygamy is not allowed. But my question to you is the personal law, the Muslim personal law versus constitutional guarantees that every citizen, whether Hindu or Muslim, has. So a Muslim woman certainly does not want to be, you know, one of 4 wives or one of 3 wives to a man. But if the personal law says कि नहीं आपको करनी पड़ेगी शादी, तो तब क्या करेगी वो बेचारी? नहीं, देखिए ये पॉलीगेमी में आपने ये तो अच्छा टॉपिक रेज किया. वही में मिसअंडरस्टैंडिंग है अक्रॉस द बोर्ड, मुसलमानों में भी और नॉन मुस्लिम में भी. सबसे पहले तो ये हम समझें कि पॉलीगेमी इस्लाम में है क्या. कुरान शरीफ में सिर्फ एक आयत है जो 2 या 3 या 4 बीवियों की बात करती है. तो और उसमें ये कहते हैं कि तुम 2 या 3 या 4 शादी कर सकते हो, नॉट के करो, परमिशन है कि कर सकते हो, प्रोवाइडेड यू ट्रीट देम इक्वली, कि अगर आप उनमें बराबरी कर सकते हैं. और लेकिन कितनी भी आपकी डिजायर हो बराबरी करने की, खुदा ही जानता है कि बड़ा मुश्किल काम है. देयरफॉर यू मैरी ओनली वन. तो इसमें एक तो ये कि ये इससे परमिशन विच इज कंडीशनल ऑन इक्वालिटी. मुसलमान उलमा भी ये कहते हैं कि ये कंडीशनल परमिशन है, सब कहते हैं. मैं कहता हूँ एक कंडीशन नहीं है, 2 कंडीशंस हैं. और 2 कंडीशंस क्या है, अब उसका कॉन्टेक्स्ट समझिए. ये आयत जो आई उसमें कुरान शरीफ में, ये ऑर्फन्स की बात हो रही थी. ये खुदा ये कह रहा है, अल्लाह ये कह रहा है कि भाई ऑर्फन के साथ जुल्म न करना, उनकी प्रॉपर्टी हड़प ना करना, कर लेना, उनकी अच्छी चीज लेके अपनी बुरी चीज उससे सब्स्टिट्यूट ना कर देना. और सबसे अच्छा तो ये होगा कि उनमें से तुम 2 या 3 या 4 से शादी ही कर लो, यानी उनका सेक्सुअल अब्यूज ना करना, उनसे शादी कर लेना.
और उनके साथ फिर, लेकिन शादी भी इस तरह करना कि ये नहीं कि अपनी जो एक बीवी बैठी हुई है पहले वो तो महारानी और ये तुम्हारी कॉन्क्यूबाइन, इसके साथ एब्सोल्यूट इक्वालिटी करनी पड़ेगी। तो ना कॉन्टेक्स्ट, तो ये तो मैं कहता हूँ कंडीशन तो दो हैं कि उनमें से आप 2 से 3 से कर लो। अब मैं दूसरी करने निकलूं ये मैं भूल जाऊंगा कि ऑर्फन्स में से करनी है। ऑर्फन्स का मतलब ये ऑर्फन्स का ताल्लुक क्या है? ऑर्फन का ताल्लुक ये था कि उस जमाने में चूंकि ट्राइबल वॉरफेयर बहुत होती थी तो मर्द तो बहुत सारे मर जाते थे, बहुत सारी विडोज होती थी और उनके बच्चे होते थे और विडोज होती थी। और उन विडोज की जो हालत होती है, जो अभी भी होती है, तो उन विडोज के रिहेबिलिटेशन के लिए आयत थी कि तुम उन औरतों में से 2 या 3 या 3 से 4 से शादी करो, लेकिन बराबरी करनी है, उनको बराबर का बीवी बनाना है, न कि सेक्स ऑब्जेक्ट बनाना है। ये कॉन्टेक्ट था। तो अब अगर जब साफ लिखा हुआ है, जब मुझे कुरानिक परमिशन अगर है किसी आयत से, तो वो आयत क्या है कि उनमें से, उन ऑर्फन्स में से तुम 2 या 3 या 4 शादी कर लो। तो ये कंडीशन हम मुसलमान क्यों भूल जाते हैं? ये भी हमें याद रखनी चाहिए कि एक नहीं 2 कंडीशन है, इक्वालिटी जो है करने वाली, और दूसरे कि उन ऑर्फन्स में से शादी करो, विडोज से करो, विडोज भी बच्चों वाली विडोज से करो ताकि उनको इकोनॉमिक सिक्योरिटी मिले। तो ये कौन जी, तो जहां तक यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है, अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि should there be a uniform civil code, especially on issues like marriage or adoption, और बाकी भी जो गारंटी करती हैं सब सिटीजन्स को इंडिया के अंदर, what the constitution guarantees, which sometimes personal laws twist according to their own benefit. हाँ, कोई नहीं, आपका पहला सवाल था, ये मेरे जवाब से देने से रह गया था। अब तो पॉलीगेमी की डिबेट बिल्कुल ही मिसगाइडेड है, क्योंकि हिंदुस्तान में पॉलीगेमी बहुत कम है जी। बहुत कम है। और एक ही रिपोर्ट पिछले 70 साल में बनी है। 1975 में एक स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया कमेटी बनी थी। उसने 2 लाख लोगों को इंटरव्यू किया था और उसमें ये पाया कि हिंदुस्तान की सारी कम्युनिटीज पॉलीगेमस है, सारी कम्युनिटीज, और सबसे कम पॉलीगमी मुसलमानों की है। ट्राइबल्स की 15% हिंद, इसी तरह जो बुद्धिस्ट, जैन। ये कौन सी रिपोर्ट है सर? स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया कमेटी। ओके। तो इसको टुवर्ड्स इक्वालिटी, इसके किताब का नाम है टुवर्ड्स इक्वालिटी, निकाल के देखें, मैंने इसमें फिगर्स कोट किए हैं। तो इसमें ये पाया गया कि एक तो मुसलमानों में पॉलीगमी सबसे कम है। फिर मैंने कहा कि ये सिर्फ सिंगल रिपोर्ट में है या ट्रेंड है। तो मैंने 1930 ऑनवर्ड जितने सेंसस थे वो सब पढ़े, जब तक 1950 तक ये सर्वे में आती थी, बाद में सेंसस ने छोड़ दी। तो 1930 का, 1940 का, 1950 तीनों सेंसस में पाया कि पॉलीगेमी सारी कम्युनिटीज में है और मुसलमानों में सबसे कम है। ये सारे सेंसस में पाया। अब मैं पॉलीगेमस हूं नहीं, लेकिन इसके लिए मरने को तैयार हो जाऊंगा इस राइट के लिए। जो ये चीज पैराडॉक्सिकल, जब मैं करता ही नहीं तो छोड़ दूं, है ना। अच्छा, जो मुझ पे अटैक कर रहे हैं वो खुद पॉलीगेमी करते हैं। मुझे तो आज तक 73 साल में ज्योति जी कोई एक मुसलमान जिसकी 2 लिविंग बीवियां हो नजर नहीं आया। आपको हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं उसे जाके हाथ में लाऊंगा। तो ये सिर्फ ये हमें इसलिए पॉलीगमी तो यहाँ पे होने का बड़ी नॉमिनल है ही नहीं। तीसरी चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर हिंदू हो या मुसलमान पॉलीगमी करना भी चाहे, पॉलीगमी के लिए औरतें हिंदुस्तान में है ही नहीं। आपने जेंडर रेशियो सुनी है जी? फॉर 1000 मैन, आखिरी सेंसस में 2011 के सेंसस में 940 औरतें थी। आज की डेट में 924 औरतें हैं। एक दूसरी औरत मुझे कहां से मिलेगी जब एक पूरी फुल वुमन नहीं, क्योंकि मैं तो कहता हूँ एवरेज स्टेटिस्टिकली स्पीकिंग नोबडी हैज 1 फुल वाइफ, एवरीबडी हैज 0.9 वाइफ, क्योंकि स्टेटिस्टिकली दूसरी वुमन तो है ही नहीं। अच्छा, हो सकता है उसके जवाब में लोग कहते हैं कि हो सकता है फिर भी लोग का दुक्का जो 5% जो पॉलीगमी है वो अगर करें, पॉपुलेशन रेट ग्रोथ के लिए बड़ी अच्छी चीज है वो। क्यों? क्योंकि द ओनली वाइफ ऑफ अ हस्बैंड से अगर 5 बच्चे होते हैं तो दूसरी वाइफ से सिर्फ 1.2 रह जाता है, क्योंकि तो स्टेटिस्टिकली अगर कोई दुक्का किसी ने की भी तो उसे बर्थ रेट पे कोई असर नहीं पड़ता ना। यूनिफॉर्म सिविल कोड की डिमांड पर है इस वजह से आती है कि कुछ लोगों को फील होता है कि ये तो 4 कर लेते हैं, हमको तो हम नहीं कर पाते, भाई कर लो, 2 करके दिखाओ तो सही कितना मुश्किल काम होता है। और बोल तो अब मिलेगी नहीं, है ही नहीं, क्योंकि मैंने बताया गिनती नहीं है हिंदुस्तान में।
तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर अच्छी चीज नहीं, बड़ी अच्छी चीज है। आपको आगे से निकाह करना पड़ेगा बजाय फेरे करने के। यूनिफॉर्म का मतलब ये थोड़ी है कि हिंदू कोड सब पे हो जाएगा। फिर यूनिफॉर्म मीन बेस्ट प्रैक्टिसेस फ्रॉम एवरीवेयर लेके और वो की जाए। मैं समझता हूँ वो यूनिफॉर्म सिविल कोड पे डिबेट होनी चाहिए और उसका एक ड्राफ्ट बन के वो डिस्कस होना चाहिए। बड़ी अच्छी चीज है। मैं चाहूंगा कि पॉलीगेमी पे बैन लगे। बहुत सारी इस्लामिक कंट्रीज में ऑलरेडी बैंड है, वहां तो कोई बीजेपी और आरएसएस नहीं है, लेकिन अगर उनके बैन है तो दैट मींस वो दे डू नॉट कंसिडर के इस्लाम इसके खिलाफ है। तो क्योंकि मैंने भी जैसे बताया कि इस्लाम में तो एक कंडीशनल परमिशन थी, वो कंडीशन भी बड़े कॉशन एंड वार्निंग के साथ कि तुम्हारे बस का है नहीं, देयरफॉर मैरी ओनली वन, ये है उसमें तो आयत क्या ही है। तो सर जैसे आपने कहा कि बीजेपी और आरएसएस, आपकी किताब में भी लिखा हुआ है दैट हाउ द आरएसएस बिलीव्स दैट that you know the explosion or the explosion of population amongst Muslims will increase the Muslim population and that will overtake the Hindu population. तो ये जो डर है ये कहाँ से आया हुआ है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले इस्लाम comes to India या साउथ एशिया की अगर हम बात करें अराउंड 7th 8th century AD, तो पिछले 1300-1400 सालों में हिंदू population has remained about 80-85%. तो ये जो एक the fear of the Muslim, where does this come from? नहीं, एक तो ये कि रिमेंड वो ठीक नहीं है कि रिमेंड नहीं, बल्कि 84 से 79.8 पे आए माना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब ये स्टडी हो गया है, ये 70 साल की बात है। और 2100 में जो अब मुसलमान 14.2% है वो 18 पॉइंट हो जाएंगे। 80 साल के बाद सिर्फ 4 पढ़ेंगे। सेकेंडली जो 1951 में अगर 30 करोड़ हिंदू मुसलमानों से ज्यादा थे ओवरकम करने के लिए, आज वो 80 करोड़ है और आगे जाके 100 करोड़ हो जाएंगे। तो इनको थ्रेट कहां से हो रहा है? ये थ्रेट जो है ये सिर्फ मैन्युफैक्चर्ड थ्रेट है, ये सिर्फ पोलराइज करने के लिए सारी बातचीत है। इस थ्रेट में कोई रियलिटी नहीं है। यही मैंने इसमें आर्ग्यू करने की कोशिश की। फिर मैंने इसका एक बड़ा कंक्लूसिव जवाब भी ज्योति जी बनाया। मैंने यहाँ मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं प्रोफेसर दिनेश सिंह, वाइस चांसलर ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, बहुत अच्छे मैथमेटिशियन है, टॉप रंग मैथमेटिशियन है। मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि दिनेश जी मैं आपको अपने स्टेटिस्टिक्स भेज रहा हूँ, ये बताओ इस रफ्तार से मुसलमान कितनी जल्दी मेजॉरिटी बन जाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने मेरे रफ कैलकुलेशन से 600 साल बनते थे कि अगर 60 साल में 4% है तो 600 साल में 40%। तो उन्होंने कहा, उन्होंने जो एक एनालिसिस करके दिया, जो इसका हिस्सा है अपेंडिक्स 1, वो मैथमेटिकल मॉडल उन्होंने बना दिया। और उनका सवाल ही नहीं पैदा होता है कि कभी भी मुसलमान हिंदू से ऊपर ओवरकम कर सकते, ओवरटेक कर सकते। तो ये इसके पढ़ने के बाद तो किसी का भी अगर फियर है, अगर जेन्युइन फियर है तो वो दूर चला जाना चाहिए, और अगर मैन्युफैक्चर्ड है तो भाई उस पर चेक लगना चाहिए। मैं ये समझता हूँ क्योंकि मैंने इसमें ये लिखा है कि देखिए हम 5 हमारे 25, हम 4 हमारे 40, हमने बड़े बड़े नेताओं के मुंह से सुना है, राइट। मैंने तो आज तक एक मुसलमान 2 बीवी या 4 बीवी और 25 बच्चे वाला नहीं देखा। फ्रैंकली मैंने तो 2 बीवी वाला भी नहीं देखा। लेकिन मुझे एक दिखा दे कोई एक जिसकी हम 5 हमारे 25 हैं, जिसकी 5 बीवियां हैं, 4 बीवियां हैं और जिसके 25 बच्चे हैं, दिखा दे। हम ये ऐसा झूठा प्रोपेगेंडा करके जो नफरत फैलाना और पोलराइजेशन कम्युनिटी की है, इसको दूर करना चाहिए। तो ये मैंने ये आप पीएम मोदी जो उस वक्त गुजरात में जब उस वक्त मुख्यमंत्री थे तो तब उन्होंने ये बात कही थी, हम 5 हमारे 25। मैं उनका नाम मैं नहीं लेना चाहता, आप ले रही हैं, मैंने नहीं लिया। मैं तो कह रहा हूँ कि जनरली ये हम 5 हमारे 25, हम 4 हमारे 40 बहुत लोगों से हमने सुना है। और लेकिन ये सब बोगस प्रचार है, फैक्ट तो नहीं है, स्टेटिस्टिकली तो नहीं। स्टेटिस्टिक ये पढ़ के इस किताब का कोई मुझे जवाब बता दे, मुझे दिखा दे वही एक आदमी कि और उस एक 5-25 वाले से हिंदुस्तान की आबादी इतनी हो जाएगी। ये मैंने इसमें एक चीज लिखी है कि या तो इग्नोरेंस पे बेस्ड है कि उनको पता ही नहीं, या इस वजह से है कि वो डिलिबरेट मिस्चीवियस प्रोपेगेंडा है कि पोलराइज करो, क्योंकि पोलराइजेशन से पॉलिटिकल फायदा होता है, राइट। मैंने ये कहा कि पहला ऑप्शन मैंने रूल आउट किया है कि भाई इनको मालूम नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बड़े पढ़े लिखे लोग और बड़े रिसर्च ओरिएंटेड लोग हैं, ये बड़ी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसलिए फैक्ट्स इनको मालूम ना हो ये तो मुमकिन नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन ही बचा कि फैक्ट पता है लेकिन करते जाओ ऐसा प्रचार
झूठा, जिससे लोगों के दिमाग में को बस मुसलमान आ रहे हैं, बाबर आ गया और अकबर आ गया, ये प्रचार लोगों को, हिंदुओं को डराने के लिए है। और बल्कि उनकी उल्टा देखिए, मुसलमानों के मुंह से मैंने कोई एक जो स्टेटमेंट मिला हो, ये मुझे कहीं से दे दे, कोई मुझे राइट विंग का आदमी मुझे दे दे कि देखो उन्होंने फला ने ये प्रचार किया कि जल्दी जल्दी बच्चे पैदा करो ताकि राज हो जाए तुम्हारा। लेकिन हिंदूज का हमने बड़े बड़े नेताओं के मुंह से सुना है कि हिंदुओं को चाहिए 10-10 बच्चे करें, 5-5 बच्चे करें ताकि उनकी गिनती बनी रहे। ये मेरा एक चैप्टर, इसमें चैप्टर 8 या आधा चैप्टर इसी कोटेशन से मैंने, कोई मन घड़त नहीं है, जो एग्जैक्ट उनके कोट से वो डाले हुए इसमें। तो सर मैं ये आपसे पूछना चाहूंगी कि जो आपने किताब में आपने जो आरएसएस के हेड हैं मोहन भागवत जी, उनको भी एक कोट आपने किया कि मुसलमानों को साथ लेके चलना चाहिए और ऐसा नहीं है कि वो सब हिंदुस्तानी हैं, कि वो किसी गैर मुल्क को बिलोंग करते हैं। दैट इज नॉट ट्रू। सो एंड देन ही टॉक्स अबाउट वोट बैंक पॉलिटिक्स। तो मेरा सवाल ये है कि ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ कि जो कांग्रेस गवर्नमेंट्स रही हैं, दे हैव आल्सो यूज्ड मुस्लिम्स इन टर्म्स ऑफ वोट बैंक पॉलिटिक्स, और पूरी कम्युनिटी को एक तरीके से, अगर आप किसी को इंडिविजुअल ना देखें बट यू सी इट एज अ बैंक, दैट इज आल्सो नॉट इज इट जस्ट ग्रेट पॉलिटिक्स बट इट्स नॉट अ गुड थिंग एट ऑल। बिल्कुल। देखिए भागवत साहब ने जो कहा कि देखिए सब कौमें एक हैं, बराबर हैं, बहुत अच्छा कहा। जैसे म्यूजिक टू माय ईयर, खुदा करे ये चीज वो बार बार कहें, और क्योंकि उनकी बात में बहुत वजन है और लोग उनको सुनते हैं। लेकिन और उनका ये कहना भी कि वोट बैंक पॉलिटिक्स में मुसलमानों को यूज किया गया, ये भी बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने कहा। और मैं समझता हूं कि वोट बैंक तो एक्चुअली सभी हैं, हर एक का वोट बैंक है, और हर सेक्शन एक वोट बैंक है। क्या कम्युनिटी के नाम पे वोट नहीं मिलता, कास्ट के नाम पे नहीं मिलता, सब कास्ट के नाम पे, गोत्र के नाम से वोट नहीं मिलता? तो वोट बैंक सारे। अगर कोई वोट बैंक नहीं है तो वो एक्चुअली मुस्लिम है, क्योंकि अगर आप ये देखिए यूपी में आप देखें कि एक कास्ट है जिसके सिर्फ 6-7% वोट है, लेकिन 50% चांस के उसमें से सीएम बन जाएगा। दूसरी कास्ट है 8% उनके फॉलोअर्स है और 50% चांस के उनमें से कोई बन जाएगा। लेकिन मुसलमान यूपी में 19-20% है, लेकिन कभी भी उनको दाना डालने, टुकड़ा डालने के अलावा, हड्डी डालने के अलावा उनके साथ कुछ नहीं किया जाए। उनके चीफ मिनिस्टर बनने का तो चांस नहीं है, क्योंकि वो वोट बैंक नहीं है। अगर वो वोट बैंक होते तो वो पावर में कहीं ना कहीं तो होते, और ये कुछ पावर शेयरिंग होती उनको, तो वो बिल्कुल टोटली डिवाइडेड है। वो 10 जगह उनका वोट बढ़ता है। इसलिए वो वोट बैंक सबने यूज किया, हर पार्टी ने, कांग्रेस ने, बीजेपी ने, उसने, सब यूज करते हैं। लेकिन मुसलमान एक बैंक है जो बैंक नहीं है, उसको बल्कि पॉलिटिकली क्लेवरली उनको डिवाइड इसीलिए किया जाता है कि ये बैंक ना बन जाए, एक साथ एक जगह वोट ना देने लग जाए। तो एक साथ एक जगह वोट देंगे तो उनको पॉलिटिकल पावर थोड़ी बहुत आने की कोई वो हो जाएगी संभावना। सर ये मेरा आखिरी सवाल है। आपने अपनी किताब में ये भी लिखा है कि जैसे इफ यू लुक एट मुस्लिम कंट्रीज आउटसाइड, और सऊदी अरब का आपने मिसाल दिया है कि सऊदी अरेबिया's population has doubled in these last few decades. तो from 20 million it has become about 34 million. लेकिन हम दूसरी तरफ अगर देखें, बांग्लादेश के जो growth rates, economic growth rates, they're doing really well. In fact, Bangladesh has been, socioeconomic indicators are much better than India. Okay, the population is 1/10 of India, but its indicators are excellent. तो क्या आपको लगता है कि साउथ एशियन इस्लाम और जो कुछ फर्क है बाकी मुस्लिम देशों के मुकाबले में? नहीं, देखिए इसमें जो मैंने एक चैप्टर में 10 कंट्रीज का एनालिसिस किया है, 10 मुस्लिम कंट्रीज, और उससे मैंने ये साबित किया है कि देखिए वहां तो कोई बीजेपी टाइप का पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है। ईरान, वहां पे फर्टिलिटी डिक्लाइन इतना कम है, इतना ज्यादा है, बहुत अच्छी फैमिली प्लानिंग चल रही है। और बांग्लादेश हमसे अच्छी 1979 के रेवोल्यूशन के बाद जब वो वहां के मुल्ला राज है वहां पे, लेकिन वहां पे फैमिली प्लानिंग एज ए स्टेट पॉलिसी अडॉप्ट हुई है। बांग्लादेश ने फैमिली प्लानिंग एज ए स्टेट पॉलिसी, वहां के इमाम फैमिली प्लानिंग की बात करते हैं, विच इज वाई बांग्लादेश का जो बर्थ रेट है इंडिया से ज्यादा अच्छा हो गया। तो इंडिया के इमाम क्यों नहीं बात करते फैमिली प्लानिंग की?
करनी चाहिए। हमने, मैं ये तो कह रहा हूँ, उनको हमने लोग मोबिलाइज करने की कोशिश नहीं की। मैंने इसमें यही आर्ग्यू किया है कंक्लूजन में, और एक मिसाल भी दी है कि मैंने एक दफा 1995 में इमामों की पावर को देखते हुए मैंने गुड़गांव जिले के इमाम, क्योंकि मैं पंजाब हरियाणा बोर्ड का एडमिनिस्ट्रेटर था, मैंने इन इमामों की मीटिंग बुलाई। मैंने कहा कि भाई देखो, आपके इतना इन्फ्लुएंस होता है, आपके गांव में लोग, आपके यहाँ तो हिंदू औरतें भी आती हैं कि जी बच्चा नहीं हो रहा, तावीज दे दीजिए, बच्चा बीमार है, तावीज दे दीजिए। अगर आपकी इतनी इन्फ्लुएंस है गांव में, आपको ये कैसे बर्दाश्त होता है कि कोई बच्ची एडोलेसेंट की तरफ गई तो आपने उसको स्कूल से विड्रॉ कर लिया कि नहीं नहीं वो पराया धन है, वो स्कूल जाना सेफ नहीं है, या किसी बच्चे को पोलियो इफेक्टेड हो जाए और आप पोलियो ड्रॉप ना होने दें, तो आपकी बात मानते हैं, आप पोलियो में क्यों नहीं लीडरशिप लेते? उन्होंने कहा हम लेते हैं। तो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया और गुड़गांव जिले को 1000 इमामों की 400 टीमें बना के गांव गांव भेज दी। गुड़गांव जिले ने टॉप किया। इंडियन एक्सप्रेस में एडिटोरियल था उस पे, अखबारों की हेडलाइंस, और इस किताब में 2-3 हेडलाइंस इसमें छपी हुई भी हैं कि जब इनको हमने पॉजिटिव रोल दिया, क्योंकि हमने कहा, एक तो ये था कि हम इनको कहते हैं आप बड़े निकम्मे हैं, आप बड़े बैकवर्ड हैं, ऑब्सक्यूरेंटिस्ट हैं ये, उसके बजाय हमने उनको अपील की, उनके प्राइड को अपील की कि भाई आपकी इतनी ताकत है, इतनी पावर है, आप इन चीजों के लिए क्यों नहीं यूज करते? उन्होंने कहा कर लेते हैं। उन्होंने करके दिखा दिया। इंडोनेशिया ने, बांग्लादेश ने इमामों को यूज किया है मस्जिदों से फैमिली प्लानिंग का प्रचार करने के लिए, हम भी कर सकते हैं। करना क्या है, जो मैंने स्ट्रेटेजी सजेस्ट की है कि भाई यहाँ के कुछ मुस्लिम लीडर्स को इंडोनेशिया, ईरान, बांग्लादेश का टूर पे भेज दो। टूर से कुछ ना कुछ प्रभावित होके आएंगे, और वहां के उलमा को बुला के हमारे उलमा को एड्रेस करा दो। 10 में से 6 भी अगर इन्फ्लुएंस हो गए तो ये एक मूवमेंट तो शुरू होगी। तो कोशिश नहीं हुई है इसमें। हर प्लान डॉक्यूमेंट ने कंसर्न जरूर किया है कि मुसलमानों में फैमिली प्लानिंग नहीं होती, लेकिन उसको करने के लिए करना क्या है, उसको वो बात ही नहीं की। पॉलिटिकली भी, बल्कि ज्योति जी, इमरजेंसी के बाद से पॉलिटिकल इतना डर बैठ गया कि फैमिली प्लानिंग की कोई बात करने नहीं चाहता। मैंने इसमें ये एनालिसिस भी किया कि पार्लियामेंट में क्वेश्चन, विधानसभा में क्वेश्चन ही नहीं पूछे जाते इस सब्जेक्ट पे, क्योंकि ये अनटचेबल सब्जेक्ट हो गया कि भाई इसकी बात नहीं करना। इसको बात करते हुए सरकारें और नेता डरते। मैं समझता हूँ डरने नहीं चाहिए। बात, आप इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, जब संजय गांधी के अंदर जो फैमिली प्लानिंग का बिल बहुत ही बड़ा डिजास्टर हुआ था, रादर देन इम्प्रूव दीज फैमिली प्लानिंग थिंग्स। जी, उसका रिएक्शन इतना बुरा हुआ कि आज तक फैमिली प्लानिंग की बात करते हुए सरकारें डरती हैं। उसी को मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। बल्कि एक कमेटी बनी थी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की, जिसका मैं ही चेयरमैन था। उसकी रिपोर्ट में मैंने कोट की है इसमें। तो उसमें हमने ये कहा कि भाई हमने देखा कि 0.003% क्वेश्चन, पार्लियामेंट क्वेश्चन फैमिली प्लानिंग पे होते हैं। अरे वही क्यों, इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसकी तो बात करनी चाहिए हमें, तो इसको प्रचार करने चाहिए। लेकिन वो सब डरपोक इतने हो गए, टिमिड हो गए कि इसकी बात ही नहीं करते। तो मैं समझता हूँ उसकी बहादुरी से बात करनी चाहिए। Dr. Quraishi, thank you so much for your time. Fascinating conversation. मैं सबसे ये कहूँगी जो हमारे ऑडियंस है कि आपकी किताब को खरीदें, पढ़ें, and if you could also just, I would request you to show the book also. अच्छा, इसमें मैं एक चीज फिर क्लैरिफाई कर दूं कि इस किताब में ये जो हिंदू मुस्लिम ये सिर्फ एक बात समझाने के लिए किया गया है। मेरे डेडिकेशन ही है यूनिटी इन डाइवर्सिटी को, और मेरी इस किताब के पीछे एफर्ट के दोनों कॉमन जो है, हिंदू मुस्लिम साथ साथ आए, ये दोनों का कॉमन कॉज है, नेशनल कॉज है। और इसमें मैंने मुसलमानों से बड़ी स्ट्रॉन्ग अपील की है कि फैमिली प्लानिंग करो, चाहे कोई दूसरा 10-10 बच्चे करे, हम 2 से ज्यादा ना करें। ये मैंने अपनी बिरादरी, अपनी कौम को बड़ी पुरजोर अपील की है। थैंक यू सो मच सर। और आप जो है, हम आपकी किताब भी खरीदेंगे और औरों से भी कहेंगे। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बुक, फैसिनेटिंग कॉन्वर्सेशन, सॉफ्ट कवर, which is the Print's online vehicle for publishing books.